विसर नहीं दाता अपना नाम दिया, गुण गावा दिन रात नानक चाहेगो। सारे विसर नहीं दाता अपना नाम दिया, गुण गावा दिन रात नानक चाहेगो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪੀਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪੀਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਨਾ ਝੂਠੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੋ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇਸ ਨੀ ਮੇਰਾ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ। ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇਸ ਨੀ ਮੇਰਾ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਟੁੱਟੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾੜ। ਜੇ ਤੂੰ ਟੁੱਟੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾੜ। ਇਹ ਹਫਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਹਫਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਉ ਸ਼ਰੀਰੋ ਲੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਉ ਸ਼ਰੀਰੋ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਓ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਕ
तकिया आसरा तेरा, आसरा तेरा जी होर सबे टाइयां टेरियां। एक तकिया आसरा तेरा जी होर सबे टाइयां टेरियां। बाबा जी होर सबे टाइयां टेरियां। एक तकिया आसरा तेरा, आसरा तेरा जी होर सबे टाइयां टेरियां। सतनाम जी होर सबे टाइयां टेरियां। बाबा जी होर सबे टाइयां टेरियां। सतनाम जी। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਜੀਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਆਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜੀਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 1999-2000 ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਿਗ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈ ਆ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਆਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਜੀਵ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। बाबा जी से हम पहले तो हम कोर्ट में जो है कि रामजे में हम नौकरी करते थे किसी किसान के पास। अच्छा जी। नौकरी करते थे तो मेरा दिल में ऐसा इच्छा हुआ कि मुझे अब गुरु चाहिए। तो दिल में बहुत तमन्ना हो गया कि मुझे गुरु वाला बनना है। सब बोलता है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती है, तो मैं क्यों बेगुरे रहूं? क्योंकि कहावत में है कि जिसके पास गुरु नहीं है तो उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए गुरु वाले के ही हाथ से पानी पीना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, मुझे अब गुरु वाला बनना है। तो पल इधर कोट रांझे में जो है ना, तो सब आदमी वहाँ पर पीर बाबा का स्थान है, वहाँ पर संत बाबा जी उस टाइम में शरीर नहीं छोड़ा था, तो वो सभी को नाम देता था जी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चलता हूँ उसी बाबा के पास, नाम देता है, अब मुझे गुरु तो बनाना ही है, इसलिए मुझे गुरु बना लेना है। जब बाबा जी को आए तो बाबा जी बोलते हैं कि बाबा जी हमको जो है कि चेला बना लीजिए, हमको गुरु चाहिए। तो बाबा जी जो है हमको बोलता है तुमको गुरु चाहिए? हम बोले हाँ बाबा जी हमको गुरु चाहिए। तो बोलता तुम ऐसा करो, तुम इधर से रोड धर के ऐसे ऐसे करके चले जाओ और उधर पलियाँ है गांव, पलियाँ गांव में तुम चले जाना और तुमको वहीं पर बाबा जी मिलेंगे। हम बोले ठीक है। तो वहाँ से जब हम इधर से गुजरे तो पैदल ही दिल में तो मेरा इच्छा था मुझे सदगुरु को ही मिलना है, दूसरा तो और कोई तमन्ना नहीं था। ठीक है। तो वहाँ से जब हम रोड पर आए तो इस रोड गेट उस टाइम में जो है ना अपना पलियाँ वाला, तो उस टाइम में बन रहा था गेट। अच्छा, बन रहा था? बन रहा था, नया ही बन रहा था, सेटिंग शूटिंग हो रहा था, तो बन रहा था गेट। तो वहाँ पर एक मनकू बाबा भी था। ठीक है जी। तो हम बोले कि हमको बाबा जी से मिलना है, तो गुरु महाराज से, तो हमको जो है कि किधर से जाना होगा? ठीक है। बोलता है कि देखो उधर जा करके बहुत बड़ा गेट आएगा, उसके बाद तुम अंदर चले जाना, फिर उसके बाद बाबा जी वहाँ पर बैठा होगा, और बाबा जी कभी कभी ऊपर वाले कमरे में भी रहते हैं, ऊपर में भी कमरा है महाराज का, तो वहाँ पर जो रहते हैं, तो इस वजह से तुमको वहीं मिलेगा। हम बोले अरे बाबू उतना दूर कौन जाएगा और कहाँ मिलेगा बाबा जी, बड़ी हमको भारी लग रहा था। हम सोचे कि कोई आदमी मेरे साथ हो ना, तब ना, दिल में मेरा यही बात चल रहा था। हम बोला अच्छा देखूंगा मैं ढूंढ के।
हाँ जी, तो वो कहते भाई तुसी सोचा, आपने सोचा कि आप इतनी दूर कैसे जाएंगे? हाँ, हम इतना बड़े गुरुद्वारे में कहाँ ढूंढेंगे बाबा जी को। जी। तो ऐसी महाराज का कृपा हुआ कि गाड़ी उठाया सरकार ने अच्छा जी। और हमको वहीं पर चले गया नाम ध्यान देने। गेट पर ही मिल गए। गेट पर चले गया। जी। तो हमको उधर बोलता है देखो तुम्हारा कितना किस्मत बढ़िया है कि बाबा जी तुमको खुद मिलने के लिए आए हैं। वाह। तो इसलिए कहावत में कि तो कोई अगर 4 कदम अगर चल के आता है ना संघा, तो ये 40 कदम चल के जाते हैं मेरे सरकार। वाह, क्या ये बात। 40 कदम चल के जाने वाला है। तो जब वहाँ पर महाराज जी गए तो वहाँ पर एक बेंच लगा हुआ था, तो हमको बैठा लिया। ठीक है। बोलता था, हम बोले महाराज जी हमको अपना सेवक बना लीजिए, हमको गुरु चाहिए। तो महाराज जी जो है ना हंसने लग गए। फिर हम बोले देखिए महाराज जी, क्यों पीछे वाला जो मेरा जीवन था ना वो सब बहुत मैंने गलत काम किया था, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। ठीक ठीक। झूठ बोलना, ये करना वो करना, मतलब मैंने बोला महाराज जी मैं तो बहुत पापी आदमी हूँ और मुझसे तो बहुत पाप हुआ है, तो इसलिए कैसे क्या होगा। बोला तुम जो पहले कुछ भी किया तुम अब सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बाबा जी ने हाथ ऐसे कर लिया और बोला सब कुछ अब वो मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं, सब मेरे ऊपर छोड़। बोला कि देखो सबसे पहली बात तुम्हारा खान पान, तुम कोई गलत चीज़ नहीं खाना, मीट मछली अंडा शराब ये सब जितना भी चीज़ है साफ सुथरा भोजन करना, और तुमको ये सब चीज़ नहीं खाना है। हम बोले ठीक है महाराज जी, वैसे पहले से मैं नहीं खाता था। ठीक है। हम बोले ठीक है महाराज जी, अब ये सब मैं नहीं कुछ खाऊंगा। और उसके बाद तुमको जितना चीज़ आँखों से दिखाई देता है ना जी। ये कुछ नहीं रहने वाला है, ये सब नाश हो जाएंगे, नाशवान है। हम बोले अच्छा महाराज जी, तुमको सिर्फ सतनाम जपना है और मेरा ध्यान धरना है। हम बोले महाराज जी कैसे जपेंगे। हम बोले देखो हर हमेशा बोलने, जैसे मैं काम करने जाता हूँ या कोई बाहर जाता हूँ या और कहीं जाता हूँ, बोला देखो काम करता है आदमी गाना गाता है ना। हम बोले हाँ, तो तुम अंदर से जपना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मन से जपना अंदर मन आत्मा से, दिल से। हाँ, तो फिर काम भी करना, किसी को पता भी नहीं रहेगा। और जो भी आदमी आएगा उसके ऊपर सो मेरा ही रूप देखना, हर हमेशा तुम्हारा ध्यान बना रहेगा। तो हम बोले महाराज जी हम तो श्रीमद् भागवत गीता जी का पाठ भी कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेते हैं। तो बोले देखो अगर उसका पाठ करते हो तुम तो उस अक्षर में मेरा ध्यान धरना, वो जो अक्षर होता है ठीक है। उस अक्षर में तुम मेरा ध्यान धरना, और उसके बाद जो है कि तुम किसी जगह ये बात को नहीं भूलना, हर हमेशा तुम्हारे नीचे वो अंदर में, अंदर मन जो नीचे है अंदर आत्मा में वही बात चलना चाहिए सुमरन का। हम बोले ठीक है महाराज जी। तो ये सब बात कहने के बाद उसके बाद हम महाराज जी को प्रणाम किए जी। और हमको ये बोला देखो तुम काम कहाँ करते हो। हम बोले महाराज जी हम तो इधर उधर अभी नौकरी कर रहे हैं, तो मेरा एक भाई राजमिस्त्री साथ में काम करता है संजय यादव। अच्छा जी। तो मैंने बोला मेरा एक भाई काम करता था तो वो भी मिस्त्री साथ में, तो यहाँ पर डेरे में काम चल रहा है, तो मेरा भाई आ गया। ठीक है। मेरा भाई आ गया तो फिर उसके बाद भाई को भी नाम ज्ञान मिल गया। वाह। फिर उसके बाद हम तो ले ही लिए थे। फिर हमको जो नाम ज्ञान दिया ना, तो हमने बोला कि अच्छा नाम तो मिल गया है, बाबा जी का नाम जप रहे हैं, अंदर से प्रसाद तो मिल गया था, हमारा तो जो मन था वो आकाश में पहुंच गया था। मैंने सोचा कि इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। जी। चलो मन जप रहे, देखते हैं कोई कुछ मतलब अगर बोलेंगे तो पूरा होता है ना दिल में, लेकिन सुमरन तो कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसे समय आया कि वहाँ पर हम जो कंपाइन चला था ना, बहुत पराली का ढेरी था और खेतों में 10 किले 12 किले में कम से कम होगा, तो उसमें हम आग लगा दें। इधर गन्ना का खेत था 1.5-2 किला का। तो मैंने सोचा कि चलो हवा इधर है तो चलने देते हैं, कोई बात नहीं। और सुमरन मेरा एकदम चल रहा है पूरी रफ्तार में, सुमरन में कोई कमी नहीं, जैसे बाबा जी बोला वैसे मेरा चल रहा है। आग ऐसा है कि गन्ने के खेतों की तरफ चले गया जी। अब मैं बोला भगवान हे मेरे बाबा, हे मेरे वीर सिंह सतनाम, मैं तो सतनाम ही बोलता था, मेरे सतनाम। अब तो लगता आग लग जाएगा इधर, सतनाम हे मेरे भगवान तू अब कुछ कर इसका। आग इतनी रफ्तार से आया तो मैंने बोला कि अगर ये जल गया तो मुझे जिम्मेदार तो पैसा भी नहीं देंगे, तनख्वाह भी नहीं देंगे, कि मुझसे तो गलती हो गया, मारेगा भी, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने सोचा अब मुझे वही सतनाम ही बचाएगा।
ऐसी मालिक की लीला हुआ कि एकदम जब बनने पर आ गया आग, 12 इंच का ही ज़्यादा बनना होगा, और 12 नहीं होगा, वो 10 इंची मानिए, इसमें 2 इंची लगा, फिर भी आग लग गया था बनने पर। अब आग घुसने वाला था खेत में कि हम बोले हे सतना, हमने खड़ा हो गया वैसे जैसे इज्जत बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के आगे सुमरन कर। हम बोले सरकार अब तू, हवा ऐसे सो गया कि एकदम तुरंत उधर चले गया। मैंने सोचा, देखा मेरे सतनाम को इतना ताकत है, इतना शक्ति है, सतनाम में मेरा बहुत पावर है। अंदर में और ज़्यादा सुमरन हम करने लगे, हम तो चमत्कार देख लिए। ऐसे सुमरन करते करते उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद हम डेरा जो और ज़्यादा आने लगे। फिर किसी का अगर नौकरी करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि नौकर मेरा है, ये चले जाता है डेरा, हम तो इधर भागने लगे ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि वो भी बोलने लगा, कहाँ गया था, मैंने उधर गए थे, बोलता था। हम बोले नहीं, अब भगवान मुझे नौकरी नहीं करना। यहाँ पर धीरे धीरे हमारा भी काम सेटिंग हो गया, दोनों भाई सेटिंग हो गया, काम करने लगे। जहाँ 8 घंटा था तो वहाँ 12 घंटा किया। हम सोचे कि पैसा तो है नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेहनत करते सभी पैसे चढ़ाएगा, मैं मेहनत ही करूँ। फिर हमने काम जो है ना, काम को काम नहीं समझा, हमने बहुत एक अलग ही तरीका रूप अपना लिया दोनों भाई। ना देखना रात, ना देखना दिन, काम मैंने किया। तो सरकार का मेरा इतना कृपा हुआ, रात में हम लोग सोते थे ना, तो मेरा भाई को बोलता था, मुझे नहीं बोलता था, मेरा भाई को बोलता था, ज़्यादा रात में तुम कहाँ गया था, किससे किससे मिला था। हमने सोचा, अरे बाप रे, ये रात का बात हमको कैसे बताता है, क्यों बताता है। हमने देखा अपने भाई की दृष्टि, देखो ये तो भगवान है। चलो जी, अच्छा फिर बाबा जी कहते यादव जी रात को कहाँ थे? हाँ, हमने बोला अपने भाई को जी, हम लोग रात में सोते थे, इसको कैसे मालूम है कि हम लोग रात में कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं। हम बोले देखता है, ये तो भगवान है, ये तो बाबा नहीं है, ये तो भगवान है। भगवान, मैंने लिए तो हमारे अंदर का बात कैसे जानता है, तुम जाता है, फिर एक दिन नहीं, जिससे मिलने जाता है, और 2 दिन, जिस दिन जाता है फिर बोलता है कि ज़्यादा आज तुमने किससे मिलने गया था। वाह, और हमारा अंदर में जो था वो और मजबूत हो गया, यकीन पक्का हो गया। मैं बोला अरे बाप रे, ये तो रात में हम जहाँ जाते हैं ये सब जानता है, सपने की बात भी जानता है। फिर हमने सोचा कि नहीं, फिर हम लोग अंदर से डरने लगे। हम बोले अरे बाप रे, ये तो हमारा भगवान सब कुछ जानता है और यही है भगवान। फिर हम लोग सोचे देख, सब कुछ मेरा सब यही भगवान है। हम लोग और काम ज़्यादा करने लगे, ज़्यादा काम करने लगे। हम बोले अब हमको भगवान मिल गया है, हम तो भगवान ही बोलते हैं, भगवान मिल गए। भगवान ही है ही भगवान, हम बोले खुदा है, रब है। हम महाराज जी को बोलते हैं, हमको किसी को नहीं मानना है, मैं आपको ही मानना है, मुझे, मैं नहीं जाऊंगा किसी को। महाराज जी मुस्कुराते थे, बोलता कुछ नहीं था कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ, नहीं, वो कुछ नहीं बोलता था, वो हंसता था, मुस्कुराता था। तो हम ऐसे हम बड़े मजा लेते थे, बड़े मस्ती लेते थे। फिर एक दिन हमको महाराज जी कहाँ लेके चले जाते हैं, एक नदी है, सपने में में रेता है, पानी है, और बाबा जी को लंगोटा पाया हुआ है। उस टाइम लंगोटा हम भी डालते थे, हम भी लंगोटा, हाँ उस टाइम हम भी डालते थे 2019 से सब में। उस टाइम हम भी एकदम, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, हम भी लंगोटा डालते थे, यानी वैसे हम भी जती रहते थे। तो उसके बाद हमको वैसे महाराज भी मिल गया, जैसे मेरा इच्छा था वैसा सदगुरु भी मेरा मिल गया। जैसे ध्यान धरे अर्जुन, वैसे ही भगवान मिल दर्शन दे देता है। वैसे मेरा सदगुरु मिल गया, जैसे मेरा ध्यान तो वैसा ही गुरु मिल गया, पूर्ण गुरु मिल गया। तो जब ये हमको दिखाया कि वहाँ पर ले जा करके घुमाया, फिर सवेर जब हुआ तो फिर हम सोचते थे महाराज जी एक बात मैं आपको पूछूं। बोलता बोलो। हम तो हिचकिचाते थे, डरते थे, उससे हम सारी बात करते थे। उतना बाप से हम नहीं करते थे, माँ से नहीं करते, जितना हम बाबा जी से सवाल जवाब करते थे। तो बाबा जी बोलता है बोलो, आप जो हमको ले गए थे बाबा जी उधार, तो वो कौन सा जगह था? ऐसा ऐसा जगह था और ऐसा ऐसा हमको लंगोटा आप डाले हुए थे और हमको भी लंगोटा पहना हुआ था। बोलता अच्छा, वहाँ पर हमने पूजा किया था। महाराज ने बोला हाँ कि हमने उधर पूजा किया, उधर पूजा किया था। हमने उधर घुमाने ले गया था। हम बोले अच्छा महाराज, हम बोले आप भगवान हैं सरकार, महाराज आप भगवान हैं। महाराज जी हंसने, बोलता नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, वो दाता है। हम बोले नहीं महाराज जी,
आप हैं। वो ऐसे दिखाते थे, हाँ। ऐसे छुपा लेते थे, हम बोले ऐसे दिखाते वो थे। बोलता है कि नहीं वो है दाता, हम बोले नहीं वो नहीं है आप हैं, हाँ, हम बोले भगवान आप हैं। बिल्कुल। तो ऐसे बोलता है वो नहीं बोलता था मैं हूँ, हम बोले नहीं आप ही हैं, क्योंकि मैं देखता था बाबा जी को तो इसलिए मैं उसको ही बोलेगा, बिल्कुल। मैं किसी को जानता ही नहीं था। हमने रब को थोड़ी देखा, नहीं, हमने नहीं। इनके रूप में हाँ। भगवान के दर्शन किए हैं, और तो- गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो इस बोलता है जी। चलो ऐसे हमारा चलता रहा चक्कर, और फिर बस मेरे भाई को फिर बोल देना यादव कहाँ गया था। तो ये सिलसिला चलता रहा, हम लोग काम इतना किए ना, हम बोले अरे बाप ये तो भगवान है, मन अंदर में कुछ बात सोचेंगे तो भगवान को पहले पता लग जाए। सब जानते हैं। तो इसलिए हम लोग बढ़िया, हम लोग जब सोते थे ना उधर रसोई था, इधर पशु पहले बांधा हुआ था रहता था, तो हम लोग दोनों भाई सोए भी रहते थे, तो महाराज जी इतना सामान भर के लेके जाता था प्लेट में हम दोनों भाई को खिलाने के लिए, और हम लोग को बोलता है कि ज़्यादा, हम बोलते अरे बाप रे, राजा का राजा महाराजा महाराज जी, हम लोग बोलते थे महाराज जी, महाराज इतना बड़े भगवान है महाराज है, और हमको खुद ही खाने खिलाने के लिए आता है प्लेट में डाल के, और ये खुद आता है और सब आदमी को कहाँ देता है, और हमको कैसे देता है, ये खुद हमको देता है खाने के लिए, और बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाता है, खूब खिलाया, हमारा मन भर दिया। उतना मैंने आज तक खरीद के ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा ना खा पाया, मन भर दिया, दोनों भाई को खूब खिलाया। तो महाराज जी हमारे मुस्कुरा गए और अपना लीला रचाते थे, हम लोग भी मस्त थे, दयारी करते थे। तो एक दिन बोलता है ज़्यादा कितना दयारी लोगे, बाबा जी जो आप दीजिएगा मैं वही लूँगा। मैंने ये नहीं बोला कि मैं 50 लूँगा, 40 लूँगा, 30 लूँगा, नहीं, मैंने जो आप देगा वही लूँगा, मैंने सोचा जो देगा वही सही, मैंने दिल में धारा सब कुछ छोड़ दिया गुरु पर। हाँ, जो देगा वही सही। चलो काम किया, सेवा करके, फिर समय नज़दीक आया, उधर पॉपुलर लगा हुआ था, और हम लोग ऐसे थे ना कि अगर कोई काम में लग जाते थे ना, आते नहीं थे अपनी मर्जी से, जी। जब तक उनको हुक्म नहीं होता था। अच्छा। रात में भी पॉपुलर छानते रहते थे, चाहे वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात सीढ़ी लगा, जितना मर्जी से हाँ, फिर आवाज़ मारता जी। था, अरे उसको भूख लग गया होगा, जी। फिर उसको फिक्र था, हमको नहीं होता था, हमको बुलाता था, हम तो जानते थे हम तो पैसा चढ़ा नहीं सकेंगे, मैंने यही काम करूँगा। तो हमको महाराज जी बोलता है, हम बोले महाराज जी मैं यही काम करूँगा, झाड़ू लगाऊंगा, इसलिए हम 7 झाड़ुए लगाते हैं ज़्यादा। तो सरकार ऐसे हमारा बातचीत चलता रहा, तो कुछ दिन बीता, तो हम घर जाने की तैयारी कर अपने गाँव। अपने गाँव। तो महाराज जी हमको कमीज दोनों भाई को बना के दिया, जैसे आप रुमाल सिर पे बांधे हैं ऐसे रुमाल दिया जी। दोनों भाई को सिर पे बांधने के लिए। गुरुद्वारे में प्रोग्राम था, हमको बोला अब तुम जो है सिर पे एक कपड़े बांधना, प्रोग्राम है यहाँ पर बहुत आदमी आएंगे। जी। हम बोले ठीक है बाबा जी। हम बोले बाबा जी एक बात बताइए तो, बोले क्या, तो हम उल्टे सीधे सवाल कर जाते थे। हाँ, हमारी हमको तो ना हमको आँख था ना हमको कान था, हम तो अंधे थे मैं समझिए। जहाँ रोकता हूँ, हाँ। जो हमारी अकल है, हाँ। जो बुद्धि है, वो बहुत छोटी है। हाँ। वो उनकी महाराज की जो, वो तो पार ब्रह्म बहुत जानते हैं। सो हमारे सवाल भी छोटे छोटे ही होते हैं। तो हमको ऐसा सवाल अब समझता हूँ नहीं करना चाहिए था, जो मैंने उस समय किया है, मुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस महाराज का तो परीक्षा लेते हैं, जब महाराज का परीक्षा में हम लोग 1 मिनट में आउट हो जाएंगे, बिल्कुल। इसलिए हमको नहीं, हम तो ऐसे उतावला मिले। महाराज जी एक बात बताइए, और सब आदमी का ढोल बजता है और जो है कि फोटो लगते हैं, आपका तो लगता ही नहीं है। महाराज जी हंसने लगे, कहता है कि देखो जी। जंगल में जो शेर होता है ना, जी। वो अकेले रहते हैं, वाह क्या बात है। और साधु लोग वो अकेले रहते हैं, मस्त वो रहते मन से सुमरन करते हैं, और सतनाम का जो हम सुमरन करते हैं ना, जो जाप होता है वो अंदर से होता है, वो मस्त में रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। किसी से मतलब। और ये आवाज़ उतना टाइम तुमको अच्छा लगेगा ढोल का, जितना टाइम तुम सुनेगा। वाह। जो अंदर की आवाज़ होगी और जो अंदर की धुनी होगी उसको सुनना चाहिए। हम बोले महाराज वो कैसे होगा? बोलता कि जब तुम सतनाम सतनाम अंदर से जाप करोगे ना, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ। एक होता है कि कुछ आदमी की क्रिया, ये करने से वो करने से तुम्हारा नेत्र खुलेगा, ये खुलेगा। हमको अब ये अनुभव हुआ है कि हमारे गुरु महाराज खाना बनाकर एक ही बार मुंह में डाल देता है। वाह।
यानी हमको कोई क्रिया करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक ही सिर्फ ध्यान हमको महाराज का करना है और अंदर से सुमरन करना है और मन को टिकाना है, बस उसी में हमको सब कुछ मिल जाएगा। कोई 9 शहर नहीं घूमना, एक ही बात, तू 10वां शहर में पहुंच जाओगे, 10 द्वार में पहुंच जाओगे। इसीलिए हमको शांति उसी में मिलेगा। हम बोले अच्छा महाराज जी एक बात बताइए। चलो वो दिन तो बीत गया, फिर हम काम किया। हम बोले महाराज जी अब तो मैं घर जाऊंगा। बोला ठीक है घर जाओ। हम थोड़ा बहुत, महाराज बहुत गरीब आदमी है, घर में हमारा बहुत दिक्कत है खाने पीने का। खेती बाड़ी में है महाराज, खेती बाड़ी है। हाँ जी जादवी, जब आप घर जाने के बारे में सोच रहे थे, जब मैं घर जाने के बारे में सोच रहे थे ना, जी, तो हमने सोचा अब महाराज जी को छोड़ के जाना पड़ेगा घर। प्रेम इतना था ना कि बाबा जी बोलते थे जादव क्या चाहिए तुमको। हम बोलते थे कि तो भगवान है, कल पैसा ले लेंगे या कुछ ले लेंगे, हो सकता है अगर हम नहीं आपस दे सके तो भगवान पे तो पाप चढ़ जाएगा। फिर तो हम बोले नहीं, अगर हम लाख बोलते हैं वो भी कुछ भी नहीं उसके लिए था, क्योंकि जो महाराज जी पैसा देता था ना, एक इतना सा रुमाल था सफ़ेद, ऐसे ऐसे करता था, हमको नहीं पता चलता था, जितना मांगते थे उतना दे देता था। फिर हम दोनों भाई कमरे बंद करके देखते थे उसको कि पैसा में कोई दाग नहीं है, कहाँ से आता है नहीं आता है, समझ नहीं लगता। हम ये तो भगवान है, पता नहीं कहाँ से आता है, चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोग जितना जरूरी होता था उतना ही मांगते थे, ज़्यादा मांगते ही नहीं थे। बोलता कितना चाहिए बोल एक बार मुँह से। हम बोले नहीं बाबा जी इतना ही बहुत है, अब नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए। चलो हम बोले महाराज जी घर में हमको बहुत जो है गरीब आदमी है, बहुत दिक्कत है खाने पीने हर चीज़ का। देखो तुम एक काम करना। हम बोले क्या बाबा जी, तुम जैसे बिजाई करते हो ना गेहूँ कुछ भी फसल, तुम हमारा नाम लेके दे दो। ठीक है। गए यहाँ से, नाम ज्ञान तो लिए हुए थे। पहले ट्रेन चलता था हमारा महानंदा एक्सप्रेस, अमरपाल एक्सप्रेस। पहले पुलिस वाले ऐसे करते थे कि हमारे बिहार के जो आदमी जाते थे ना, 10-10 रुपया जबरदस्ती बोलता है कि तुम निकालो, टैक्स लेते थे, टक्का करते थे, तब टैक्स लेते थे और गारंटी करते थे। और हमारा अंदर में तो यहाँ पर भगवान का नाम चलता था। मैं बोला अब क्या होगा, अब तो मुझे झूठ बोलना है नहीं, अब तो मैं सच बोलूँगा। बिल्कुल मैंने यही बोला मैं तो सच ही बोलना है, जो होता हो जाए। बगल वाले को मार पीट के चले गया, मुझे तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने देखा मेरे भगवान ने तो ना सकते, मन मन हम खुश होते थे। और हम जब ट्रेन से जाते थे ना तो हम देखते थे कि हमारा भगवान बाबा बीर सिंह वो भी बहुत स्पीड में भाग रहा जा रहा है खिड़की के बाहर, और ध्यान करते, जैसे हमको बाबा जी समझाया था मैं वैसा ही करता था कि यानी हमको उस बाबा जी का ध्यान को नहीं उल्टाना है। बाबा जी तो ये बोलते थे कि अगर कोई तुमको एक थप्पड़ इधर से मारेगा गाल में तो दूसरा गाल भी कर देना, इसलिए उस पर हाथ में चलाना। एकदम निम्रता में हमको हो गए। हम बोले नहीं, हम लड़ाई भी नहीं करें, किसी को मारेंगे, लूटेगा लूटने दो। लेकिन हमको लूटने वाला आदमी बगल से भाग के चले जाता, हमको कुछ कहता नहीं था, उसको पता ही नहीं चलता होगा। हाँ, फिर हम सोचे अरे बाप रे, हमारा सतनाम के जाप में बड़ी शक्ति है, अरे मन तो हमारा। और बाबा जी हमको स्वरूप भी दिया था, बिहार ले गए हम अपना, महाराज जी का जो स्वरूप दिया था। अच्छा जी, गुरु वाला बने थे, हम स्वरूप ले गए महाराज जी। स्वरूप मतलब फोटो ले गए, महाराज का फोटो। हाँ, फोटो ले गए घर, वहाँ पर हम सत्संग करवाए, बाबा जी का सत्संग करवाए। तो नाम ज्ञान लिए हुए थे, हमारा मन नहीं था, एकदम आकाश चढ़ गया। फिर जो है कि एक दिन सत्संग में जो है ना, तो हम अब सोचे कि जब उधर का संत का फोटो है तो मैं अपना बाबा जी का भी फोटो रखूंगा। बिल्कुल, क्योंकि उधर के संत को मानने वाला था, कम से कम उन लोगों को मान्यता देने वाला था सभी। हम बाबा ज्यादा लोग जानते थे उसी को। हमारे बाबा जी को कौन जानता है, कोई नहीं, उसको तो हम ही जानते थे। हमको बोलता है तुम अपना बाबा जी का पूजा उधर रख के कर लो, घर में रख के कर लो। हम बोले चलो ठीक है। हमारा मन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया। हम बोले चलो हम अपना बाबा जी को घर में ही रख के पूजा करेंगे। हम हमारे बाबा जी से किसी का क्या मतलब, हम हमारा बाबा जी हमारा है, ये तो प्रेम की बात है। हमको उधर का आदमी बोलता है तुम गुरु वाला बन गया। हम बोले और बोलता है तुमको तो बिहार में भी गुरु वाला बनना पड़ेगा। हम बोले क्यों? हमको भिखारी बन जाएंगे लेकिन हम गुरु उसी को रखेंगे, पंजाबी गुरु हम उसी को रखेंगे। तो मन में तो मेरा एकदम इरादा बन गया। जब गेहूं मैंने बीजा, गेहूं उस साल मेरा
नहीं आपने कैसे बीजा? वही सतनाम कह करके सतनाम के हाँ, ऐसे अंदर ऐसे में सतनाम हाँ सतनाम हर ऐसे। छट्टा, यानी हर छट्टा हम जो ऐसे लगाना तो सतनाम करके कहेंगे। वाह गेहूँ हुआ इतना कि उसी साल से खाने से भी ज़्यादा गेहूँ हुआ, बेचे भी, हर चीज़ हुई, खिड़की दरवाजे ये वो लेना देना बहुत चीज़ खरीदने लगे, पैसे हो गए हम। तो इस वजह से फिर जब कुछ दिन उसके एक बाद मिनट छठा जो छट्टा हम दिए वैसे जैसे जैसे बाबा जी ने हमको बताया, खेती हमने वैसे ही की। खेती करने के बाद जो है कि हमको इतना खेती बढ़िया हुआ और मन में तो सुमरन सतगुरु का था ही मेरा। भगवान था, हम तो भगवान ही बोलते थे, गुरु महाराज नहीं बोलते, भगवान बोलते थे। बस भगवान मेरा वीर सिंह, भगवान मेरा वीर सिंह, हम यही बोलते थे। भगवान मेरा बहादुर सिंह। बाबा जी बोलता था कि हमको और इसको एक ही जाने, जो महाराज जी छोटा महाराज जी था, छोटे बाबा हाँ, बहादुर सिंह। हाँ, हम लोग बस भगवान बहादुर सिंह महाराज, भगवान वीर सिंह महाराज, हम यही जानते थे और कुछ नहीं जानते थे सतनाम। तो इसलिए फिर हम सोचेगा चलो कुछ दिन बीता, तो हमारी शादी ब्याह की बात चली, शादी ब्याह हो गया तो हमको फिर पंजाब भी वापस आना था। तो यहाँ पर जब आए तो पता चला कि गुरु महाराज चढ़ाई कर गए हैं मेरे, बड़ी मन में हमको दुख हुआ। उसके बाद फिर जो है कि आए तो फिर हम जब आए ना तो महाराज जी का हम पूजा किए, देखें दोनों भाई मत्था टेक के। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, अब महाराज जी मेरा अब ध्यान धरेंगे। बाबा जी ने बोला था तुम बिहार में जाओगे ना तो हम तुम्हारे साथ हैं, कहीं भी रहे, हाँ। तो कहीं भी रहे हम साथ सोचे तो ये बोलता था कि जहाँ जाओगे तो वहीं जाएंगे, में। तो हमारा वहाँ पर भी दर्शन देता था बाबा जी। तो मेरी माँ ने एक दिन ऐसा करती है वो कि वो उधर का जो संत को मानती थी, उनके गुरुजी जहाँ से हाँ, नाम और मिला। मेरा जो गुरुजी का था, दोनों का तस्वीर एक ही जगह टेबल पर था। हाँ। तो मेरी माँ ने खीर जो बनाई ना, उसने सोचा क्या कि दोनों बाबा जी का एक ही जगह हम पूजा कर देते हैं। लेकिन उसका जो मन में था, मैं अपना गुरु महाराज को चढ़ाई किया हूँ, पूजा किया है, मेरा गुरु महाराज तो वैसे रह गया। तो रात में बाबा जी बोलते हैं कि हमको नहीं दिया तुम। नहीं आपकी माता को बोला? हाँ, मेरी माता को। माता को बोले? हाँ, नहीं दिया। तो मेरी माँ ने बोला देख बेटा ऐसे ऐसे बात है, रात में ऐसे मुझे सुना दिया बाबा जी ने। हम बोले हमारा भगवान जिंदा पीर है, जिंदा पीर, वो जिंदा है, जिंदा पीर है, वो बोल देगा तेरे को। तो वहाँ पर पानी भी रख और जो है कि उसका प्रसाद भी रख। अब घर में मेरा वही चलता है कि हमारे बाबा जी का भी पूजा होगा, उसका भी होगा। मेरी घरवाली भी सतनाम का नाम लिया था बाबा महाराज से, बहादुर सिंह महाराज जी। फिर हम अपनी घरवाली को लाए, मेरा बेटा और मेरी घरवाली, मेरा महाराज जी जो था, इससे नाम ज्ञान बाबा जी ने आपके दिया। भाई ने भी दिया हुआ है? हाँ हाँ। तो हम लोग फिर बाबा बहादुर सिंह महाराज का नाम ज्ञान बेटा को और अपनी घरवाली को दिलवाए और हम लोग सतनाम को जपते हैं। हमको बहुत आनंद मिल रहा है और बस धन धन मेरे सदगुरु बाबा वीर सिंह, धन धन मेरे बाबा बहादुर सिंह। क्योंकि कुछ आदमी का नज़रिया है अलग चीज़ देखने का और मेरा नज़रिया है कुछ अलग देखने का। जो पुराना कपड़ा था ना, बाबा जी वो उतार दिया है, अब नए कपड़े में मेरे सरकार बाबा बहादुर सिंह है। जोत वही है, हाँ, जोत अब- वही है। हाँ, शरीर हाँ, दो माने जाते हैं, हाँ, दो शरीर वो है। दूसरा कपड़ा उतार के दूसरा कपड़े डाल के आ गया है। हाँ जी। अब मेरा बाबा वीर सिंह, मेरा बहादुर सिंह ही सब कुछ है। इसलिए बाबा बहादुर ही मेरा सब कुछ है। वो कृष्ण रोल करता है, कृष्ण का लीला है वो। क्योंकि वो लोग ऐसे लीला राज चाहते हैं ना कि हमको जल्दी आने ही नहीं देता नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे पास तो लीला चलेगा नहीं, क्यों तो हम तो जान गए हैं। क्योंकि हमने तो एक रोज ये भी महाराज हमको बताया था, बहादुर सिंह महाराज। हम कैसे जाने बहादुर महाराज को, आपको वो भी सुनाता हूँ। एक दिन उस हाल कमरा जो लंगर हाल है ना, वहाँ पर एक बिस्तर लगा हुआ है और इतना मोटा किताब है, ये नहीं पता इतना मोटा, कौन सा? ये मुझे नहीं मालूम, इतना मोटा किताब है और इतना बड़ा हाथ में पंख है बाबा जी का, बहादुर बाबा का। उसमें लिखता है, बोलता है, सिर्फ बोलता है विश्वम विश्वम विश्वम। जो बोला ना, हम समझ गए विश्वम होता क्या है। विश्वम तो बोल दिया बाबा, होता क्या है। फिर हमने उधर का जो साधु संत होता है बिहार में, उसको पूछे इसका मतलब क्या होता है विश्वम। बोलता विश्वम का मतलब ये होता है कि सारा सृष्टि का मालिक जो है, सब कुछ यही है विश्वम। हम समझ गए कि जो है मेरे भगवान, ये कन्हैया यही भगवान है, बहादुर सिंह महाराज।
ये लीला रचाता है और अपना लीला में सबको घुमाता है। यही बहादुर महाराज मेरा कृष्ण है। और ये फिर मेरे भाई को कभी कभी बोलना कि तू हमको ऐसे खींचो, हमसे लड़ो, हमसे ये करो। हम लोग तो डरते थे, हम तो जानते थे इसका लीला, क्योंकि ये तो भगवान है, इससे हम क्यों लड़ेंगे। लेकिन वो हम लोगों से जो हर हमेशा वो ये भाई से मेरा ज़्यादा लड़ता था कि हमको उठा करके घींच पैर पकड़ के ऐसा करो, वैसा खेलता था। हम लोग डरते। हमारा महाराज हमको इतना मानता था ना, जब भी आते थे काम करके दूरों से, तो यहीं पर हरदीप सिंह का घर में हम रहते थे। पलिया में 1 साल रहे, पलिया में रहे। हरदीप सिंह जो मेरा गुरु भाई है, बहुत हमको आदर सत्कार किया। बोला तुम ज़्यादा 1 साल रहो, 5 साल रहो मेरे घर में, ये घर भी तुम्हारा है। अभी वही बात का हमको याद आता है कि कोई आदमी होता है कि गरीब आदमी पूछता नहीं, लेकिन मेरा गुरु भाई जितने भी हैं ना, हमको सभी प्यार करते हैं। बस गले मिलते हैं, गले लगाते हैं और हमको इतना प्यार करते हैं। मेरे जितने भी गुरु भाई हैं हमको बहुत प्यार करते हैं और हम आनंद में रहते हैं। इसी वजह से अभी मैं इतना दिन के बाद आया हूँ, अभी मुझे जाने ही नहीं देता है कोई। बोलता रुको रुको, इधर से फ़ोन आ गया, उधर से फ़ोन आ गया, इधर आओ, खाना खा के जाओ। इधर जो है कि हमारा एक ग्रुप आई है कमल, कभी उसका फ़ोन आ गया, कभी मेरा दीपे भाई का फ़ोन आ गया, ज़्यादा खाना नहीं खाए, आओ जल्दी खाना खा के जाना। वो बोलता इधर खाना खा के जाना। इसलिए मेरा सरकार का इतना है। किसी आदमी बोलता है कहाँ पर रहोगे, हम बोले इस पूरा पलिया मेरा घर है। बिल्कुल बात। आदमी को तो एक घर है, लेकिन मेरे पास बहुत घर है। सही बात। पूरा पलिया मेरे एक कोठी नहीं है मेरे पास, सारे कोठी है। मैं रोकता हूँ, आप घर में नहीं रहते, सभी के दिलों में रहते हैं। ये नहीं मुझे मालूम है। जो प्रेम होता है, जिसके साथ किसी का प्रेम हो जाए, जैसे अपने गुरु महाराज से प्रेम है, तो गुरु महाराज हमारे जहाँ दिल में है ना, वो हमारे दिमाग में थोड़ी है। गुरु महाराज जो हमारे दिल में बसता है। जब हम दिमाग से सोचते हैं तो हम व्यापार करते हैं, जब हम दिल से सोचते हैं तो प्यार करते हैं। इतना ही फर्क है। प्यार और व्यापार में यही फर्क है कि जब हम दिल से करते हैं तो प्यार हो गया। छोटा सा बच्चा होता है 2-3 साल का, वो दिल से चलता है, इधर को जाता है, खेलता है, दौड़ता है, खाता, वो दिल से सोचता है। उसका दिमाग उस समय छोटा होता है, डॉक्टर बोलते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, उसका दिमाग बड़ा हो जाता है, दिल छोटा हो जाता है, तो फिर वो व्यापारी बन जाता है, व्यापार करने लग जाता है। क्यों? उसका दिमाग बड़ा हो गया, दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता। जब तक हम दिल से सोचेंगे तो हम प्यार करेंगे, जब हम दिमाग से सोचेंगे तो हम बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं। तो इतना ही फर्क है। ये सभी लोगों का घर नहीं, सभी एक दूसरे के दिल में रहते हैं। तो इसीलिए हमको कोई यहाँ पर महसूस नहीं हुआ कि हम कहाँ रहना है। हम समझते हैं हमको इतना घर इतना प्यार करता है। तो फिर जी ने हमको बोलना कि ज़्यादा कहाँ काम करते हैं, महाराज जी इधर ही करता है, मजदूरी दहाड़ी तो करना ही पड़ेगा। बोले अच्छा। हमने जब आना मत्था टेक के चले जाना, तो सरकार की इतना एकदम मेहरबानी हम पर किया। एक गाड़ी से चार गाड़ी बना दी। वाह, 4 ट्रैक्टर हुए। 4 ट्रैक्टर हुए। अच्छा, बिहार में भी ट्रैक्टर है? हाँ, बिहार में भी, घर में ट्रैक्टर ट्राली है, सब कुछ है जहाँ पर। हाँ यार, सब कुछ है। काम इतना लंबा चौड़ा हो गया, काम में फंस गए। काम में फंस गए और काम में फंस के पैसे कमाने लग गए। फिर एक दिन हमको जो है ना, कुछ आदमी लग गए बदमाश मेरे पीछे। ओके, कब कौन से वर्ष की बात है? कम से कम हो गया होगा 12-15 साल की। 12-15 साल। कहाँ पर बदमाश लगे? कोट रांझी में। अच्छा, बदमाश लग गया। तो उसके बाद जब बदमाश लग गया ना, तो हमको पकड़ा। पैसा उस दिन 60,000 रुपये मिलने वाला था भट्टे। अच्छा, रात होगी? शाम में था 7-8 बजे। तो पैसा हमसे जो है कि वो बोला कि निकालो जो है तुम्हारे पास। अच्छा। और हमने पहले कितने लोग थे वो? 3 आदमी थे, कपड़े मुँह में। अच्छा, चेहरा ढका हुआ था। वैसे हाथों में कृपान भी था, ओह माय गॉड, डंडा भी था, सब कुछ। हमको मारा भी एक डंडा। ओहो। तो उसके बाद हम साइकिल से थे, तो हमको गिरा दिया। एक आदमी को यहाँ पकड़ाएगा, यहाँ पकड़ा, हम बोलता है निकालो, हम लोग देता। तो लेकिन हमको कुछ अपने भी मान था कि हम इससे ज़्यादा दौड़ने वाले हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मिलिट्री का पहले हमने फौज में हम जो है ना जाने की पूरी ट्रेनिंग लिया था। तैयारी की हुई थी और हमने फौज की नौकरी में जो सेलेक्ट नहीं हो पाया, हमने ट्रेनिंग पूरा लिया था। गए थे, भाग दौड़ सब किए। तो इस वजह से फिर जो है विश्वास था, खुद पर विश्वास था। तो हमने उसको झटका दे दी। अच्छा। झटका दे दिया हमको, वो फिर पकड़ भी नहीं पाया। हमने 2 को झाड़ दिए। इतनी मेरी बाबा वीर सिंह की कृपा था, हम दोनों को झाड़ दे, हिम्मत भी काफ़ी था। बिल्कुल। और उसको झाड़ करके उसके बाद हम भाग गए। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन हम महाराज जी को आए इधर। बोले बाबा जी, मैं अपना बचाव करने के लिए झूठ बोलूँगा। अच्छा, पहले हमेशा सच बोलते थे? बहुत 100 में 100। अच्छा।
वही 100 में 100 जो हम सच बोलते थे, हमें कोई कमी नहीं, तो हमको कुछ अहंकार है। अहंकार कैसे आ गया कि चंद्रमा को दाग है लेकिन मुझे दाग नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं बाबा वीर सिंह का सेवक हूँ और मुझे वैसे दाग नहीं है। मैं बहुत करेक्ट चलता था। मैं हर हमेशा जो है ना, बाबा जी का जो हमको सुमरन दिया था ना, मैं इसका इस्तेमाल करता था। मैं सच ही बोल रहा, मैं कुछ करना नहीं है। चाहे वहाँ पर कटने वाला भी बात हो तो मैं वहाँ पर भी सच बोलूँगा, मरता है मर जाने दो। लेकिन उस समय तो हम बोलेंगे बाबा जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं अपना बचाव के लिए झूठ बोलूँगा। अच्छा। तो मेरे बहादुर महाराज जी मुस्कुराने लग गए। इसने ये नहीं बोला कि तुम झूठ बोलना, इसने कुछ नहीं बोला, इसने हंसने लग गया। अच्छा जी। तो हमने बोला हमको ऐसा ऐसा हुआ, देखो बाबा जी हमको बदमाश पकड़ लिए। तो मैं ठेकेदार आदमी हूँ, तो जो है कि एनी टाइम पैसे लेकर के चलना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि झूठ बोलना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप मुझे अपने बचाव के लिए झूठ बोलूँगा, मैं जाऊँगा पश्चिम तो बोलूँगा पूरा। तो इस वजह से ऐसे चलते चलते काम मेरा थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया। अब 1% झूठ बोलने के चक्कर में मैंने 90% झूठ बोलने लग गया। फिर जो है कि बाबा जी का जो हमसे दर्शन होता था ये दूर हो गया, झूठ बोलने के चक्कर में दर्शन दूर हो गया। और उसके बाद फिर हमारा मन में शांति नहीं मिली। पैसे हमने कमाया ऐसा बात नहीं है, लेकिन शांति नहीं मिला और झूठ बोलने के चक्कर में जो है कि हमारा और ज़्यादा काम खराब हो गया। बाबा जी का दर्शन हमारा रुक गया। तो फिर मैंने सोचा कि अब हमारा मन में शांति नहीं मिलता, मैं क्या करूं। तो हमको ऐसे हम बैठे हुए होटल पे, इधर से साधु महात्मा जा रहे थे। कब की बात है ये है यही दिसंबर लगभग 10 तारीख या 15 तारीख की दिसंबर 2020 की। अच्छा जी। हाँ, हम साधु बाबा बोले बाबा जी ऐसा ऐसा बात है। बोले गुरु वाला हो? मैं हाँ गुरु वाला हूँ, मैं नाम ज्ञान लिया हूँ। बोला कि ऐसा सब बात है, मन में शांति। बोला अच्छा तुम्हारा सब काम ठीक हो जाएगा। बोले अच्छा सब काम ठीक हो जाएगा। हम सुमरन भी करते, हमको बोले सब काम क्या क्या ठीक हो। हम बोले हमको बाबा वीर सिंह का दर्शन चाहिए, जो मेरा गुरु है, पहले होता था। बोले हो जाएगा, तुमसे गुरु बात करेंगे। अच्छा, उसने जो 2-3 बात बोला वो पूरा हो गया। मैंने सोचा कि गुरु तो हमको दर्शन दिया नहीं है, जो एक बात रहता है। लेकिन मैं आपको इस माध्यम से हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपने गुरु भाई और सब आदमी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो है ना अंतर की बात है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। नहीं बोलना था, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। तो जो है कि बाबा जी उधर एक मंदिर थे और मंदिर में बहुत साधु महात्मा थे। रात का समय था, सपने में जो मैंने देखा। और बाबा भोलेनाथ का एक मूर्ति था और एक पर शिवलिंग जो था मूर्ति था। तो कामर था इतना बड़ा कंधे पर। और बाबा जी मेरे जो बगल में बैठे थे और एक साधु और कौन था मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं चिपा। बाबा जी कौन थी बैठी? अपने महाराज जी। बाबा वीर सिंह? नहीं, हाँ बाबा वीर सिंह जी। अच्छा जी। हाँ, एकदम ऐसे भारी चेहरे में बैठे हुए थे। और हम इसका फेस नहीं देख रहा। अच्छा। हमको क्या बोलता है, आप क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ उसका आगे से चेहरा देख रहे हैं ना, तो हम तो जान रहे हैं हमारा बाबा जी है, हमारा जो अंदर महसूस कर रहा है मेरा बाबा जी है। ठीक है, ठीक है। और उधर से बात जो बाबा जी कर रहा है कि तुम हमको नहीं मानते हो, तो कामर जो है कि शिवलिंग से नीचे गिर जाता है। अच्छा। हम उठ के खड़े हो गए। हमको बोलता है तुम अब हमको नहीं मानते। वो हमने बाबा जी अब मैं मानूंगा। ऐसे में आया पहले डेरे में, उधर जो है कि मतलब इसका फोटो का बाबा जी को तलाश करते हैं। उसके बाद आया मैं ध्यान करूंगा, जो भी करूंगा अब मैं जो है कि सिर्फ गुरु महाराज बाबा वीर सिंह, बाबा बहादुर सिंह को ही मानूंगा। जैसे 2015 में था, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि अब बाबा जी को जैसे पहले मानते थे वैसे मानेंगे। और एक मुझे जितना मैंने दोस्त यार ये सब झूठा था, ये झूठे यार दोस्त से हमको दोस्ती नहीं करना है। मुझे मानना है कि सिर्फ मेरा बहादुर सिंह बाबा चाहिए, सिर्फ मुझे बहादुर सिंह। इसलिए अंदर में हमको अब फिल्म देखना है, तो उसी का फिल्म हमको 2-3 दिन से फिल्म दिखाई देने लगी। पहले हम आँख बंद करते थे, अंधेरा लगता था, अब मुझे बाबा जी, दोनों बाबा जी आ जाते हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और इस वजह से कि सुमरन के बाद वो भी अंदर आत्मा से करना चाहिए। और मेन माध्यम इसका ध्यान है। गुरु का ध्यान ही मुक्ति है। हाँ, और ध्यान ही सब कुछ है, और ध्यान से ही सब कुछ मिलेगा। नहीं ध्यान करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान ही करना चाहिए और सतनाम को सुमरन करना चाहिए। इसी में हम लोगों को शांति मिलेगी, और शांति का अगर प्राप्ति हो गया तो सब कुछ हो गया। और हम एक बात और बताते हैं जी,
कि हमारा जो 10 इंद्रियां हैं जी ये सबसे खतरनाक है। और इस 10 इंद्रियों से मैंने लड़ने के लिए एक चाबी का तलाश किया, जो मेरा अंदर आत्मा बोलता है कि 10 कोई बोलता है कि ये क्रिया करो वो क्रिया को, हम ये कहते हैं कि हमारे बाबा वीर सिंह के समाधि के 10 चक्कर लगाओ तो 10 ताला तोड़ दोगे। वाह। एक जो गारंटी, अंगीठा सब जहाँ हमारा हाँ, छोड़ा, जहाँ शरीर छोड़ा है, हाँ जी। अगर इसका 10 चक्कर लगा दोगे तो इसका 10 ताला तोड़ दोगे। वाह। ये गारंटी है, अगर दिल से ताला तोड़ोगे तब। ये नहीं कि हम घूमते हैं ध्यान कहीं और, ऐसा नहीं है। जी इसलिए ताला तोड़े। फिर मैंने सोचा कि 10 ताला तो तोड़ दिया, जिस शरीर में सरकार तू बसता है मुझे उस शरीर का भी तलाश है। ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल। मुझे चाहिए केवल शरीर, जो शरीर आत्मा। इंसान के अंदर में 5 शरीर 4 शरीर है, मुझे वो शरीर चाहिए जिस शरीर में मन बसता है, जिस शरीर में रावण बसता है, जिस शरीर में कंस बसता है, जिस शरीर में लोभ मोह बसता है। मुझे इस शरीर के पार वो शरीर चाहिए जिसमें आप बसते हैं। वाह। मुझे वो शरीर चाहिए, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, सिर्फ केवल शरीर का, जिस केवल शरीर में आत्मा और परमात्मा ही रहते हैं। इसमें तो रावण रहते हैं, कंस रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, लोभ मोह रहते हैं। मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे और शरीर का तलाश है। उस 4 शरीर के लिए और 4 चक्कर लगाएंगे, जो मेरा आत्मा का 14 चक्कर 15 चक्कर लगाओ और ध्यान करो। आपका जो है कि ये जो है इंद्रियां है 14 इंद्रियां आप पार कर जाइएगा सतनाम की कृपा से। जी और काम करना है क्या, सिर्फ बहादुर सिंह महाराज चाहिए, ध्यान उसका धरिए, मुरली मनोहर का, वो मेरे कृष्ण मुरारी का, क्या बात। भोले, एकदम ऐसा भोला चेहरा जब उसका खिलखिलाता वहाँ जब मेरे आंखों में आते हैं ना, मैं भगवान हे मुरली वाले, हे कृष्ण मेरे, तू ही तू ही है मेरा बाबा वीर सिंह, तू ही है मेरा बहादुर सिंह महाराज। इसलिए मैं इस बात पर विराम देता हूँ। नहीं, सत्य ब्राह्मणी हमने एक बात और पूछनी थी। जैसे आपने बोला कि जब बड़े महाराज संत बाबा वीर सिंह जी महाराज चोला छोड़ गए, उनकी चले गए दुनिया से, तो आप आए तो आपको कितना का दुख हुआ, कितना दिल रोआ? देखिए, हमको तो ये महसूस था कि मेरा भगवान था। हम तो इस बाबा मानते नहीं थे, हम तो बाबा को जानते। जो आदमी रात में चमत्कार दिखाता है और फिर दिन में पूछता है, वो तो मेरा भगवान है। मैंने तो ना राम को देखा ना कृष्ण को देखा, मैंने वो राम कृष्ण को देखा कि जो प्रैक्टिकल हमको हाथ पकड़ा के चलाता है और घुमाता है रात में। मुझे तो आज तक राम तो कभी हाथ पकड़ा नहीं, कृष्ण तो हाथ पकड़ा नहीं, और देवी देवता तो मेरा हाथ पकड़ा के चलाया नहीं। ये देवता तो मुझे हाथ पकड़ा के चलाता है और दिन में बताता है, तो मैं तो भगवान इसी को मानूंगा। पूर्ण सदगुरु मेरा यही है, परमात्मा यही मेरा भगवान है, इसीलिए मैं इसको भगवान मानता हूँ। तो इसीलिए भगवान को मैं ये कहता हूँ कि अच्छा कोई बात नहीं, हम तो सतनाम का जाप करेंगे ना, बाबा मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे मालूम था ना। फिर हम कहीं पर भी काम करते थे ना, तो हमको 2 दिन 4 दिन 5 दिन में ये आ जाया करता था। बाबा दर्शन। बहादुर जी आपको दर्शन देते थे जाके? महाराज, बड़े महाराज हमको आते थे ज़्यादा। अच्छा जी। बड़े महाराज ज़्यादा आते थे, और जो बड़े महाराज के ज़्यादा दर्शन करते थे, छोटे महाराज का जो दर्शन हमको कम आते थे। नहीं, छोटे बाबा जी आपको वहाँ पर टेबल जाकर मिल लेते थे? नहीं, हमारा ऐसा दिल था कि हम खुदे आ जाते थे, और ये फोन कर देता था हमको। अच्छा जी। हाँ, फोन भी कभी ना, तो हमको ऐसे है कि हम इससे आके मिल लेते थे। मेरे दिल में था नहीं भगवान है, तो क्योंकि प्यासे को कुएं के पास आना चाहिए, तो मैं तो पहले से प्यासा भूखा था, तो मुझे आना है ना, इसलिए मैं आऊँगा ना। हाँ, जिस टाइम में हमको जरूरी था तो बाबा वीर सिंह ने रोड पर जाके हमको नाम ज्ञान दिया। बिल्कुल। हम आए 4 कदम तो बाबा जी गया 40 कदम मिलने के लिए। ऐसे ही है संत। इसलिए हमारा बाबा बहादुर सिंह जी महाराज जो है सतनाम, और ये मुरली और ये कृष्ण रूप है, इसको जो रूप कहिएगा वही रूप है, और ये इसका मोहनी रूप सबको मोह लेता है। हम यही कहते हैं, सतनाम का सिमरन कीजिए, बाबा बहादुर सिंह महाराज का ध्यान कीजिए। अच्छा, जो मैंने सवाल आपसे किया आपने बोल उसका जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछता हूँ कि आप बिहार गए हुए थे 2001 में या 2002 में आप गए। आप गए हुए थे, बाद में बाबा जी को शरीर छोड़ दिया बाबा जी ने। हाँ, याद आ गया एक बात। हाँ, जब तो आप जहाँ आते हैं तो आप तो देखते होंगे कि नहीं, मेरी बात सुनिए। बात पहला सुनिए। मेरी बात सुनना है, आपने क्वेश्चन सुनना है फिर जवाब देना है। हाँ, क्या आपने जहाँ आकर आपको मालूम नहीं कि बाबा जी है या नहीं है, हाँ। आपको आकर जहाँ पता लगा कि बाबा जी तो शरीर छोड़ गए, वो तो अब शरीर के रूप में हमारे सामने ऐसे नहीं है, वो आत्मिक रूप में रूहानियत में हमारे साथ ही हैं, डेरे में ही हैं,
वो कहाँ जाएंगे जहाँ फिर ही हम आए। दोनों लेकिन भाई रोए उन्होंने बहुत। शरीर छोड़ दिया। हाँ। तब जब आप जहाँ आए आपको चटका लगा होगा, हाँ। आप बहुत रोए होंगे। हाँ, हम दोनों भाई आपकी रोए। उसकी मनोदशा क्या थी, आपको क्या महसूस उस समय हुआ, जहाँ कैसे आपको दिल को कैसे तसल्ली मिली, कैसे हुआ वो? देखिए, जिस टाइम हम डेरे में आए ना, हमने जो महाराज हमको बोलते थे, पहली बात है कि आदमी का सबसे मेन शत्रु है माया, मैं पैसा, बिल्कुल और ये बड़े बड़े आदमी को मोहित कर लेता है। बिल्कुल। तो हमको महाराज जी कोई कमी आने देता नहीं था। मैंने सोचता था कोई दिक्कत होता तो महाराज जी हमारा पैसे से भी पूरा कर देता था, कोई चीज़ भी दे देता था, और हमको जो है कि दर्शन भी देता था, सब कुछ करता था, और इतना प्यार करता था। बाबा जी खिलाता पिलाता था, बढ़िया था। और सतनाम का हमको सुमरन जो दिया है, हम बहुत आनंद लेते थे, मेरा भगवान था ना। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अब तो हमको आगे जो है कि वहीं पर दर्शन देगा बाबा जी, जैसे बोलते थे जहाँ तुम जपोगे वहीं पर मैं जाऊँगा। तो हम बोले चलो हम कहीं पर बाबा जी हमारे आ जाएंगे। चलो मन को समझाए, फिर मत्था टेकने हम आ जाते थे। ऐसे करते करते कुछ दिन, तो एक बात और बीच में रह गया। जब बाबा जी शरीर छोड़ा था ना, तो मेरी जब शादी हो गई थी, तो एक मेरा उधर जो है ना एक स्कूल है बिहार में, और स्कूल है, एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद होता है, मस्जिद होती है। नमाज पढ़ने वाला। जी। तो मेरा बाबा जी का जो कुर्सी है ना सफ़ेद वाला, यही सफ़ेद वाला के कुर्सी पर बैठा है वहाँ मस्जिद पर उधर बिहार में। बाबा जी बिहार चले गए हैं मेरे, और हमारी घरवाली और हम दोनों बैठे हुए हैं बाबा जी के पास, और आंखों में मेरा आंसू है। और इस बात दिमाग नहीं लगा पाए हम, आंखों में मगर आंसू है। बाबा जी कुछ बोलते नहीं, बाबा मुस्कुराते हैं और कुर्सी पर बैठा है। चलो ये दृश्य देख लिए, चले आए, फिर चले यहाँ आए। तो फिर पता चला कि जो हमारे आंखों में आंसू था ना, इसका मतलब अब ये हुआ कि हमारा बाबा जी शरीर छोड़ दिया था। तभी वहाँ पर दिखाने गया था हमको, बिहार में दिखाने गया। आपको वहाँ ही दर्शन दे दिए कि हम जा रहे हैं। हाँ, वहीं दिखा, हमको दिखा दिया, वहीं दिखा दिया। तो हमारे महाराज का बहुत कृपा है, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी तो हम में है। क्यों कमी हम है? क्योंकि हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। पहली बात, हम अपने परिवार बच्चों के बारे में अपने आने वाले समय में बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी स्कीमें प्लान्स बना रहे हैं, ऐसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके बीच क्या करते हैं हम अपने गुरु को भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोग प्रतीक्षा नहीं करते, हम लोग चाहते हैं कि आए और मुंह में डालें। बस जैसे माता सबरी ने, क्या थे वो, उसका स्टोरी तो हम उतना अगर आपको बताएंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा बात, लंबा चौड़ा में नहीं जाना है। सिर्फ मैं एक शॉर्टकट में बात करता हूँ। माता सबरी ने राम राम नहीं जब के राम का उल्टा मारा राम राम नहीं जप करके उल्टा उसका जपन कर लिया, मारा। और माता सबरी का चेहरा जो है ना कुछ अलग दृष्टि का था, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो मारा जपने से और इतना विश्वास था कि वहाँ पर मारा का उल्टा राम बन गया। और राम, हमको तो भगवान ने सीधा सतनाम दे दिया, हमको क्यों नहीं मिलेगा? हमको जो सतनाम दिया है, हाँ। अगर हम बोले नाम सत नाम सत हाँ। नाम सत, हाँ। ये भी सतनाम बन जाता है। हाँ, जरूरी नहीं सतनाम कहना है, हाँ। नाम सत नाम सत, ऐसे भी सतनाम बन जाता है। लेकिन नहीं, अगर गुरु ने उसको अगर मारा कह दिया तो मारा से वो राम बना दिया। लेकिन हमको तो सतनाम बोला है, तो मुझे तो सतनाम का ही दवाई लेना है। बिल्कुल, यही दवाई है। तो मुझे किसी का क्यों कहना माना? फिर मैंने बाबा जी, हाँ, शरीर छोड़ने से पहले मैंने ये भी सवाल किया जी कि बाबा जी अगर हम बिहार में अगर किसी को सतनाम जपने के लिए बोल देंगे तो फिर क्या होगा? बोला तुम बोल देना, हम किसी को नाम भी दे सकते हैं, हमको इतना पावर दिया बाबा जी ने, तुम बोल देना। हम बोला अच्छा, हम बाबा जी का ध्यान धरना और सतनाम का जाप करना, हम किसी को भी बोल देंगे। क्योंकि ध्यान तो महाराज का ही धरना है। हाँ, बाबा तो जी। नाम भी महाराज का हाँ, हो गया। हाँ। तो महाराज ने तो टैलों पर भी लिख दिया, हाँ। सतनाम, जो मर्जी पढ़े, जो भी पढ़ेगा सतनाम। सो महाराज सभी जगह लिख के गए तो सभी को याद रहे, सतनाम ऐसा है। इसलिए तो हमको बाबा जी ने पूरा ये दे दिया कि तुम हमारा नाम वहाँ पर भी जपा सकते हो। अच्छा, आगे की प्लानिंग बताओ। जैसे आपने जनवरी से 2021 से ये प्रण लिया है कि अब काम के साथ साथ जो झूठ बोलना पहले वो बंद कर दिया, आपने संकल्प ले लिया है। संकल्प ले लिया। क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपके विचार है और आपके संकल्प है, जो
इंसान हाँ। दिल से करता है ना, जैसे किसी का दिल बोलता है वैसे वो करता है। मैंने 2021 से ये संकल्प लिया है कि मेरा हर सांस निकले तो सतनाम सुमरन करके निकले, हर कदम चले तो सतनाम करके चले। जो बाबा जी ने जो हमको एक हाथ में माला पहना दिया था जी जी हाँ ठीक है कि तुम ये माला पहन लो, इससे तुम सुमरन करना। जी अब मैंने सोचा कि जो मेरा ये हाथ है ना, जी राइट हाथ, अब ये कोई गलत काम करने के लिए नहीं उठेगा, उठेगा तो सिर्फ धर्म का काम करने के लिए उठेगा और जो गलत काम करने, इसलिए मैंने ये माला भी हमको एक जो कि हमको याद दिलाते रहेगा कि सतनाम का सुमरन करो और गलत काम इस हाथ से करना नहीं। अपना गुरु का ध्यान धरो, जितने मैंने झूठा यार बनाए उस सब को छोड़ो और एक ही यार बनाना है मुझे बहादुर बाबा का। देखो जार बस, एक ही जार वही मेरा हमारा यार। यही है बस और और हम लोग और आर बना के ना उसमें फंस जाते तो हैं। मेरा प्यार बढ़ जाता है प्यार बढ़ता और वो प्यार को बटने नहीं देना। वो झूठे यार है। ये 4-5 दिन की बात है, मेरी घरवाली बोलती तू फोन नहीं करता, बोले देख मुझसे अगर प्रेम है तो सतनाम जप। सतनाम बोलती मैं जपती हूँ, बोले तू बस सतनाम कर, क्योंकि हम जो है कि बस एक ही गुरु में हम बाबा बनेंगे, हमको मतलब नहीं है। बोले नहीं कमा के खिलाएंगे लेकिन हमको सतनाम का ही जाप करना है। और मेरी घरवाली हंसती है, बोले मैं सतनाम के नाम सुमरन लिख करती हूँ और तस्वीर को पूजा करती हूँ। बोले वही काम कर, कोई बात नहीं, तुम कमी कुछ नहीं छोड़ा महाराज। देखो हमारा वहाँ पर भी करिश्मा दिखा रहा है घर में, अच्छा घर में करिश्मा दिखा लो, वो मैं क्यों बोलूँगा, बड़ी समस्या बात है। अच्छा और ये बड़ी बड़े रूप दिखाते हैं वहाँ, बड़े बड़े रूप दिखाते हैं मेरे घर में जिसका कोई हिसाब है। मेरी घरवाली बोलता है तू जल्दी आ। नहीं सब ऐसा है, जो बात तो आपका दिल करता वो बोल दो कैमरे में, जो नहीं करता वो ना मत बोलो। जो आपका दिल कहता तो बोल सकते हैं, नहीं वो दिल करता नहीं। देखिए कोई मैं बात नहीं। वहाँ पर जो है बजरंग बली का मंदिर भी बनवाया, कहाँ इसलिए पर? बिहार में। अच्छा इसलिए इतना चमत्कार होता है ना, छोड़िए अंदर की बात है। नहीं कुछ नहीं ना वो कुछ रहने मत दीजिए। बताओ, हम भी हाँ। आपको फोर्स नहीं हाँ, करेंगे। अंदर जो की आपको बात है। दिल की बात है वो बता दो, और हम नहीं जानते चाहते। हैं इसकी कृपा से इतना होता है ना कि बोलता तू जल्दी आ, क्योंकि अपना पास अब सब कुछ हो जाएगा। मैंने नहीं जो है कि कोई अच्छा बात नहीं। अच्छा मैं जहाँ पर एक बात और बोलता हूँ, जो बाबा जी ने गांव का जो गेट बनाया है उसमें माँ बाबा जी ने बजरंग बली का फोटो, देवी माता का फोटो, कृष्ण का फोटो सभी का लगाया है। महाराज किसी में भिन्न भेद नहीं करते, वो एक ही है, जैसे सबका मालिक एक, जो परमात्मा परमेश्वर है वो एक ही है। हम उसको कैसे याद करते हैं जी अलग अलग बात है। नहीं हमको बताया, जी हम बोले कि महाराज जी ऐसा बात है कि हम पाठ करते हैं हनुमान जी का। बोलता देखो ध्यान एक ही धरना, अगर दो धरेगा तो पागल होगा। ओके ये बोला हम, ध्यान दो का नहीं, क्योंकि दो जोत जब टकराएगा तो विस्फोट होगा। दो जोत का ध्यान नहीं करना है जी एक ही जोत का ध्यान करना है। और मेरा ध्यान धर के तुम कहीं बार जाते हो तो मेरा ध्यान धर के नमस्कार करो। यानी किसी को मतलब ये कि नहीं कि जो कि हम इसको नहीं मानेंगे, मेरा ध्यान धर के उसका रूप धर के सतनाम करके नमस्कार करो। मन में भेदभाव नहीं रखना। भेदभाव वो एक ही है, हाँ, वो एक एक ही ही है। है। शहर एक है, उसको जाने के लिए रास्ते अनेक हैं, अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन शहर जैसे जलंधर शहर है, जलंधर शहर है पंजाब का मशहूर शहर है, लेकिन जलंधर शहर तो एक है। लेकिन किधर से भी जाओ, जलंधर कैंट से जाओ, रामा मंडी से जाओ, पठानकोट रोड से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, पहुंचेगे तो जलंधर ही है वो। और वैसे भी जैसे हमारे यहाँ पर गुरु महाराज जी बाबा वीर सिंह जी बहादुर सिंह महाराज हैं, जी तो हमारे इलाहाबाद भागलपुर में जो है ना संत बाबा महर्षि में परहंस जी महाराज, मिहिदास जी महाराज, बस यही चीज समझिए। जो संत महापुरुष एक जैसे ही हाँ। होते हैं। तो उस महाराज जी भी हमको एक बार दर्शन दिया। अच्छा देखिए हम ये सोचते हैं कि हम नाम इसका जपते हैं, वो दर्शन कैसे दिया जो हमने। एक ही- वो एक- हाँ तो इसलिए वो महाराज जी जो हमारे मिहिदास जी महाराज, उसका भी सत्संग और विचार इतना बेस्ट है ना, जिसका सागर है, सागर जो नहाएगा पार हो जाएगा। बोलता है कि गंगा में नहाने से सिर्फ शरीर का साफ होगा। 5 रंग का परहंस तैरेगा और सत्संग के सागर में नहाने से परहंस तैरता है। वाह। इसलिए इस अगर आदमी गंगा नहाने से सब दुख दूर हो जाए, फिर तो हम लोग इतना सुमरन ये सब छोड़ करके सिर्फ गंगा ही नहा कर वो आ तो जाए। नहाना तो बहुत आसान है, हाँ है, दिन में 2 बार 1 बार नहा लेंगे। सभी नहाते हैं। हाँ, नहा लेंगे। वो तो बहुत इसीलिए- आसान है। इसीलिए- जपना और सिमरन करना मुश्किल है। हाँ, और जपना सुमरन करना ये भी, चाहे कोई भी संत महात्मा का कहीं पर भी सत्संग चलता है, उस सत्संग में हम ये शौकीन वाले हम सत्संग में जाते हैं, चाहे किसी भी जगह हो सत्संग, तो वहाँ पर सत्संग में जाते हैं। सत्संग एक ऐसा माध्यम है, वो एक बहुत बड़ा सागर है, और उस सागर में आदमी को स्नान करना चाहिए, और उसी में ये आत्मा तृप्त हो जाएगा, उसी से सब कुछ मिलेगा। क्योंकि उसमें जो है ना, हमको जो ये रफ्तार पकड़े हैं, इधर क्यों पकड़े हैं, हम वही सत्संग सुन रहे थे,
संत बाबा मिहिरदास जी महाराज का। वो जैसे कि हमको बोलता है ना कि माचिस आग लगा देता है, आग लगा दिया। वाह, सत्संग सुनने से हमको आग लगा दिया, ध्यान कैसे किया जाता है, ये कैसे किया जाता है। मैंने अरे मना तुम भूल गया, तुम्हारा सदगुरु सतनाम को कैसे वो क्रिया बताने लग गया, ऐसे करो वैसे करो। तो इसलिए हमको ये है, उसी से हमको जो ज़्यादा हम इधर और संघर्ष कर दिए। हमको कोई गाना नहीं सुनते हैं मोबाइल में, ना कुछ करते, सिर्फ हमको सतनाम ही सतनाम, सुनिए। सिर्फ सतनाम। सो ठीक है, आप कोई और बात कहना चाहिए? नहीं, अभी तो मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा, बाकी हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जो हमको बोले हैं तो इसलिए मैं अपने गुरु भाइयों को सबको यही कहूँगा कि जो भी है अपना सब कुछ संत बाबा बहादुर सिंह जी महाराज, संत बाबा वीर सिंह जी महाराज, ये हमारा संत बाबा पिताजी बहादुर है, सिंह ये हमारे पिताजी हाँ, है, ये हमारे संत वीर सिंह जी भगवान महाराज। है। जो भी कुछ है मेरा यही है, और न जीभ हिले न मुंह हिले, सिर्फ अंदर आत्मा से सतनाम का स्मरण करना चाहिए बस। और हर जगह अपना गुरु का ध्यान लगाना चाहिए। हर घट का वासी मेरा सतगुरु सतनाम, गुरु का ध्यान ही मुक्ति। गुरु का ध्यान है। सो इसके लिए साध संगत जी को बेनती है कि जैसे राजीव यादव जी बहुत पुराने सत्संगी आज मिले हैं, महाराज की यादें उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े हर्षोल्लास से हमारे साथ विचार साझे किए हैं। सो साध संगत जी बेनती ये है कि अगर कहीं भी कोई हमसे कोई भूल चूक हो जाए, या कोई हम बात करते हैं किसी के मन को ठेस पहुंचे, तो हम पहले से ही ऐसे माफ़ी मांगते हैं सभी से। तो हमारा ये जो मकसद है कि हम अपने गुरु महाराज को याद करें, उनकी महिमा गाएं, और उनके साथ सब संतों के एक ही मत है, एक ही मत है हाँ, सभी। सब संतों की बलि बलिहारी, सब संतों की एक ही मत है। इसलिए कोई ना किसी बड़ा है, कोई ना किसी से छोटा, सब संत एक ही है, सब एक ही सब संत है। एक ही। हाँ, सो जैसे कबीर साहब ने कहा है, बलिहारी गुरु अपने कड़ी, दिन में बार बार गुरु को याद करना चाहिए, ऐसे गुरु के बल बल जाए आप मुक्त मोहित तारे। सो ऐसे जो भी बाणी है, जो भी माल की कृपा है, सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि जो भुल चुक दी क्षमा चाਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सतनाम। क्योंकि मैंने जो भी बताया हूँ मैं अपना ही आप बीती बताया, बिल्कुल, जो अपनी ही बीती। हाँ, जो मुझ पर बीता है और जो मुझे आनंद मिला, मैं अपना उस आनंद को प्रकट किया। देखो ये तो आनंद के सोमे है। महाराज ने इतना बड़ा डेरा बना दिया, सभी को प्रेम दिया, सभी कहते थे संत हमारे हैं, संत हमारे, क्योंकि वो सभी से बराबर प्रेम करते थे, वो किसी से भिन्न भेद नहीं करते थे। सो ये मालिक जो मालिक का सब कुछ है। एक दिन जन्म तो हमने ले लिया, सभी जन्म लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? लेकिन एक पर्दे की बात है, भक्ति भजन ये सब पर्दे की बात है, पर्दा में ही अच्छा रहता नहीं, है। भक्ति भजन अलग चीज है। हाँ। भाई साहब बात क्या है, हम लोगों ने दुनिया में जो भी जन्म लेते हैं, जन्म ले लिया, अब हमने जन्म क्यों लिया है? मरने के लिए, क्योंकि हमने एक दिन मर जाना है, सभी ने मर जाना है। लेकिन उससे पहले हमने क्या करने क्या आए हैं? अपने नेक काम। परमेश्वर को याद करने आए हैं। तब के गुरु का ध्यान ही मुक्ति है। महाराज ने क्या बोला कि जब शरीर खत्म हो जाता है, जला दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो वो मुक्ति नहीं है, वो शरीर की मुक्ति है। जो हमारे अंदर भीतर आत्मा है, उसकी मुक्ति क्या है? गुरु का ध्यान ही मुक्ति है। जब हम जिंदा जी गुरु को याद करेंगे, उनका सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, लोगों को साथ देंगे, सहयोग देंगे, सिमरन करेंगे, परमेश्वर का नाम जपेंगे, गुरु का ध्यान धरेंगे, जब हम ये सभी काम करते हैं, तो एक और बात मैं भूल गया, जो हमारे गुरु जी श्रीक रूप में चले गए हैं, अब बाबा बहादुर सिंह जी हमारे ऊपर हैं, हमारी कृपा है, हमारे सिर पर हाथ है उनका। और जो संगत है, संगत से भी बहुत खुशी मिलती है। जो गुरु की संगत, प्यारी प्यारी संगत है, इसमें भी परमेश्वर आप ही, गुरु महाराज आप ही विचर रहे हैं, सब खुद ही बरत रहे हैं। सो सारे सतनाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम संत बाबा बहादुर सिंह जी महाराज, सतनाम सतनाम, सतनाम मेरे सतनाम। बहादुर सिंह जी महाराज, हे मेरे सतनाम बहादुर सिंह जी महाराज, सतनाम। सारे कृपा करो मालिक का। सतनाम जी, सतनाम।